Hello everyone. Now this is the chapter water. Today we are going to discuss very important chapter, or we can say that it is a very important topic for the point of the classes of 6th, 7th, and also for the people of our society. As water, it is today I will tell you what is the water, why it is so important, what is the need of water, and how we get water, from where we get water. Okay, now first of all, this chapter especially will get in class 6, chapter 14 as water. So topics what today we will discuss in this class, we will discuss the water, types of water, second need of water, third sources of water, and fourth distribution of world's water in world or on this our planet, how water is available, where it is available, what percentage of available in which part of the earth, either in ocean or glacier or underground, all things would be covered under this video. Okay beta, now come to the point. First of all, the word water, if we say that water our life, so it is no doubt that because on this earth or on in this universe no life is possible without water. ठीक है, क्योंकि बेटा चाहे वेदर इट इज प्लांट, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, इंसेक्ट हो, बर्ड्स हो, ऑल द लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वाटर इज द बेसिक नीड ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स. Water, we can say that water is a natural resource which is needed by all living things, or it is a very essential component. Because why it is very essential component? Because one can live without food for weeks. हम तो जीवित रह सकते हैं बिना भोजन के, but without water one can survive only few days, 1 days, 2 days, 3 days, not more than 4 days we cannot survive without water. So water is very essential component. Water, here I have written the scientific formula or the name of water, that is, it is the structure. In your higher class in chemistry you will study that water is composed of two elements, hydrogen and oxygen. In this way the atoms are arranged in a molecule of water. Its formula is H2O. हम इसको ये भी कहते हैं डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं. ओके, नाउ वाटर, हमने मैंने आपको वाटर बताया कि वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीडेड बाय ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म. और ये नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वाटर, व्हाट टाइप्स ऑफ वाटर. सो वाटर इज वाटर, कोई टाइप्स नहीं है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नीड, इट्स सोर्सेज and its use, water is of different types. First of all we will discuss the on the basis of consumption of water by animals. जो एनिमल वाटर को कंज्यूम कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, उसके बेसिस पर वाटर टू टाइप्स के हैं. द वन इज पोटेबल वाटर, द वन इज पोटेबल दैट इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, जिसको हम पी सकते हैं, एंड अदर इज अनपोटेबल वाटर दैट कैन नॉट बी ड्रिंक by any animal. So तो जैसे हमारे पास पोटेबल वाटर में आता है टैप वाटर, वेल से जो वाटर मिलता है, रिवर का जो वाटर है, बट अनपोटेबल वाटर दैट कैन नॉट बी ड्रिंक बाय अस, दैट इज लाइक द वाटर दैट इज प्रेजेंट इन ओशन और सी, समुद्र में, महासागर में जो पानी है, बिकॉज इट इज सैलिन वाटर, salty water, the concentration of salt is more, that's why it is not comes under the category of potable water. Okay, so and next on the availability of water, the one is rain water that we get from the sources, rain water that we get from rain, well water, tap water is also known as underground water because this is pumped out from the ground, river water.
ओके, सो हमने पढ़ा वाटर, टाइप्स ऑफ वाटर। अब हम पढ़ते हैं नीड ऑफ वाटर। सो वाटर इज बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जैसा कि मैंने पहले शुरू की वीडियो में बताया था कि इट इज नीडेड और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियल resource that is needed by all living things, whether it is plant or animal. So the need of water has a large need, large use. जिससे it is needed by first of human beings for our survival. हमें जीवित रहने के लिए पानी चाहिए. There are different works or activities that is done by water, like cooking, washing, cleaning. All these are done by water. Next जो हमारा यूज है, water is also used in our field for irrigation purpose. irrigation का मतलब होता है watering of crop. जो हम क्रॉप बोते हैं, फसल उगाते हैं, उसमें जो पानी का प्रोवाइड कराते हैं उसको बोलते हैं इरिगेशन। तो वाटर का जो नीड है जो हमको जरूरत है, ड्रिंकिंग के लिए है, वॉशिंग के लिए है, कुकिंग के लिए है, क्लीनिंग पर्पज में यूज होता है, इरिगेशन में यूज होता है। वाटर इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड, फूड प्रिपेयर करने के लिए। आपने इसके पहले क्लासेस में पढ़ा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए भी वाटर की जरूरत पड़ती है। फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा है कि प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोड्यूस फूड। सो वाटर इज नीडेड बाय प्लांट्स, एनिमल्स, everywhere. In industries water is needed. It is used for preparation of different drinks, beverages and food materials. So water, need of water is there. Irrigation हो गया पहला, दूसरा for drinking, cooking, washing, cleaning. Next हो गया it is needed by plants for the manufacture of food by the process of photosynthesis. It is used by farmers to irrigate their crops. In our house we use water for gardening purpose. गार्डन में जो फूल पौधे लगाते हैं उनको रेगुलर वाटर सप्लाई करना पड़ता है, क्या करें तो वो डेड कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज सोर्सेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट वन इज व्हाट? सोर्सेस ऑफ वाटर। तो बेटा देयर आर डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर। द वन इज क्लाउड, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। सेकंड वन इज the most important source is ice caps and glaciers. Glaciers जैसे हम लोग गंगोत्री और यमुनोत्री जहाँ से दो नदियाँ हमारी निकलती हैं वो हो गए, और आइस कैप्स माउंटेन्स हैं जो माउंटेन पे आइस कवर्ड है, वो आइस मेल्ट होता है, वाटर प्रोवाइड कराता है। दूसरा हमारे पास जो ट्रेडिशनल वे है, वेल्स है, कुआं, इससे हमको वाटर मिलता है। River is also one source of water. Underground water. So these are the different source of water. Next one is, तो sources of water में हमारे पास केवल दो सोर्स होते हैं, एक मेरीन सोर्स होता है और एक फ्रेश वाटर सोर्स होता है। मेरीन सोर्स में हमारा बेटा ओशन और सी आते हैं, और फ्रेश वाटर सोर्स में हमारा रिवर है, वेल्स है, टैप वाटर है, रेन वाटर है। मीन्स दैट इज नॉट दैट वाटर दैट डू नॉट कंटेन सॉल्ट, वो हमारा फ्रेश वाटर है जिसको हम इरिगेशन पर्पज, वॉशिंग पर्पज, कुकिंग पर्पज में यूज कर लें, वो हमारे फ्रेश वाटर सोर्स है। और जिसको हम इन सब सोर्स में इन सब पर्पज के लिए यूज, क्लीनिंग, वो बाथिंग, कुकिंग नहीं कर पाते हैं, वो हमारा साल्ट वाटर है, मैरीन सोर्स है। और मैरीन सोर्स हमारा ओशन है। क्या है? ओशन है। ये इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड वाटर। उसके लिए मुझे थोड़ा आपको इरेज करना पड़ेगा यहाँ पे। Now, this is our Earth, and we all have studied that. Now, हमने यहाँ पे अर्थ का फिगर बनाया हुआ है आपको बताने के लिए कि ये लास्ट टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
वर्ल्ड्स वाटर, जो पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में जो वाटर है वो कितना परसेंट कहाँ है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपने एसएसटी में, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, साइंस में भी पढ़ा होगा, छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। अगर अर्थ को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो उसके 3 पार्ट क्या है, वाटर है। 75% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। ओके बेटा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 75% ऑफ अर्थ टोटल एरिया और सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। आउट ऑफ दिस 75%, जो 75% वाटर है, इतना ज्यादा वाटर होने के बाद भी वी हैव स्कार्सिटी ऑफ वाटर, द वाटर इज लिमिटेड। अब ऐसा क्वेश्चन क्यों होता है कि भाई इतना ज्यादा पानी होने के बावजूद पानी की कमी है, जगह जगह आप टीवी पे ऐड देखते होंगे, सेव वाटर फॉर सेव फ्यूचर जनरेशन। ऐसा क्यों है इतना पानी? ऐसा इसलिए बेटा कि बिकॉज जो 75% वाटर है उसमें से 97% वाटर आपका जो है ओशंस में है, सैलिन वाटर है, मेरीन वाटर है। सैलिन वाटर मतलब होता है साल्टी वाटर, और ये जो साल्टी वाटर है इसको ना तो हम अपने हमारे किसी यूज करनी है, इसको हम ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भी यूज नहीं कर सकते हैं, वॉशिंग के लिए भी नहीं यूज कर सकते हैं, क्लीनिंग के लिए भी यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये वाटर हमारे लिए जो है होने के बावजूद भी ना के बराबर है, क्योंकि इसको हम यूज ही नहीं कर सकते। अब ये जो 97% वाटर है, अगर इसको हम ये कहा जाए कि इसको हम प्यूरिफाई नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, लेकिन ये इतना कॉस्टली है कि अगर इसको हम प्यूरिफाई करके और बोतल में भर के दें तो 20 रुपए की बोतल कम से कम 2-250 की मिलेगी, या फिर 1000 रुपए की मिलेगी 1 लीटर की बोतल जो आपको बिस्लेरी की मिलती है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं, अदर टॉपिक है, बाद में पढ़ेंगे। पहले हम सीखते हैं कि जो 75% वाटर है उसके बावजूद स्कार्सिटी क्यों है वाटर की। तो 97% तो ओशन हो गया, सैलिन वाटर जो किसी यूज कर रही है। 3% वाटर हमारा फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर दैट इज यूज्ड बाय अस। अब आउट ऑफ दिस 3%, इस 3% में बेटा 79% वाटर जो है वो आपका आइस कैप्स और ग्लेशियर की फॉर्म में। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर ह्यूज मास ऑफ आइस विच फ्लोट ऑन ओशंस। ओशन में, समुद्र में जो बहुत बड़ा बर्फ की चट्टान है उसको ग्लेशियर बोलते हैं। आइस कैप्स, माउंटेन पे जो आइस है, तो ये इतना परसेंट वाटर, तो जो 3% में से 79% हमारा भाई बर्फ है, वो भी हमारे किसी यूज का नहीं हो गया। अब आते हैं उसके बाद से इसमें से 20% जो हमारा हो जाता है वो हमारा कहाँ हो गया? ग्राउंड वाटर। कहाँ पे चला गया? ग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर। वो क्या है? ग्राउंड वाटर। और एसेसिबल सरफेस वाटर, एसेसिबल सरफेस, इसका सही आता है एसेसिबल सरफेस वाटर। एसेसिबल सरफेस वाटर का मतलब है कि जो हमारा कहाँ पे है? सरफेस, सरफेस वाटर। सरफेस वाटर का मतलब है, सरफेस वाटर 1% होता है, लाइक रिवर एंड पॉन्ड्स, रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, वेव्स, इन सब चीजों में जो वाटर है ये हमारा सरफेस वाटर है। ओके बेटा, सॉइल मॉइस्चर। अब ये जो हमारा बचा हुआ परसेंटेज है उसमें से कितना होगा? 79 प्लस ये 99% हो गया, और 99 में जो 1% बचा है, ठीक है बेटा। और उसके बाद हमारा वाटर कहाँ पे अवेलेबल है? ह्यूमन बींग्स में हमारा वाटर है, उसके बाद हमारा रिवर में वाटर है, और विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि हमारे पास वाटर की कमी क्यों है। अब नेक्स्ट, वाटर को कैसे कंजर्व करना है ये हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। ओके।